तो हर कुछ चीज का सोल्यूशन जो है वो रूट्स के तरफ ही जाएगा। किसी को शुगर हो गया, डायबिटिक हो गया, प्रेशर हो गया, तो वो चीज़ एक लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की लेते रहते हैं और पूरी ज़िंदगी चलती रहती है। तो आपके साथ जुड़ के, आप होलिस्टिका में जुड़ के, आयुर्वेद में जुड़ के, So the time factor, the age factor, since how long is suffering, how is his lifestyle, how is his addiction, how is the stress level. So these are all factors which will determine that how far we will claim reversal of the disease completely. Financial wise आप 9th richest in the country कह सकते हैं, cleanliness में कह सकते हैं, but when it comes to health, Do you know Surat have a hidden place that offers free sound healing sessions on every Sunday. Sound healing aims to promote a relaxation and reduces stress through the use of soothing sounds like singing bowls or chanting. नमस्कार, स्वागत है आपका री इन्वेंट के अगले एपिसोड में। आज हमारे साथ इस एपिसोड की शोभा बढ़ाने और आपको बहुत सारा कुछ जीवन के बारे में सिखाने के लिए, समझाने के लिए धर्मेश जी हैं। इसके पहले कि धर्मेश जी खुद बताएं कि कैसे उन्होंने क्या किया और कैसे क्या है, मैं एक कुछ लाइनें इनके लिए ही बोलना चाहता हूं जो होलिस्टिका में करते हैं। आप जस्ट एक इमेजिन करिए कि आप सो के उठते हैं सुबह, थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं, थोड़ा योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर एक अच्छा सा पौष्टिक ब्रेकफास्ट लेते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे माइंड सेट के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और पूरी लाइफ को अच्छा बनाते हैं। होलिस्टिक का मूल मंत्र और बेसिक, जहाँ तक मैं समझता हूँ है। अब क्योंकि आप उसके एक्सपर्ट हैं, तो धर्मेश जी बताइए कि कैसे आपने एक चाइल्ड मनोवैज्ञानिक के रूप में, एक डॉक्टर थे आप, वहाँ पे आप बच्चों की हेल्प करते थे, वहाँ से और आपकी ये जर्नी होलिस्टिका केयर की तरफ कैसे गई? थैंक यू। या सो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया कि हाउ द होलिस्टिका जो मिशन है, हाउ दैट इज रूटेड। सो अल्टीमेटली घूम फिर के वापस कहते हैं ना कि सर्कल इज नाउ एट द एंड, सर्कल इज क्लोजिंग। सो दैट इज व्हाट द मिशन ऑफ होलिस्टिका इज, टू ब्रिंग बैक टू द रूट्स। तो हर कुछ चीज का सोल्यूशन जो है वो रूट्स के तरफ ही जाएगा। So starting a wonderful journey, completing MBBS in 1997 and then completing my post-graduation with psychiatry and then becoming child psychiatry. That is how I started my journey in 2001. So I'm blessed to be certified child psychiatrist, consultant child psychiatrist for more than 25 years. बहुत ही बेहतरीन experience रहा, बहुत ही बेहतरीन journey रही, and it is still continuing as a child psychiatrist. But something beautiful happens in life, I would say most beautiful and awesome gift, because that made my life more meaningful. So in 2009, or rather from 2009 to 2012, I had to go through 8 major surgeries. Oh, In 2009, I was diagnosed with Hodgkin's lymphoma, that is one type of cancer. And then coming back from the surgery and then going through other surgeries, it was a very deep question within, that something is happening inside which is probably not dealt with medicines or with the conventional modern medicine जो मेरी पढ़ाई है, जो because I studied allopathy hardcore, and somehow my medicine was not helping me to deeply heal within. So that started the search, or I went across many parts of the country to find out how these sciences of healing, which heals at the root cause, be it Ayurveda, naturopathy, acupressure, and a lot more other therapies, because our country is blessed with this type of therapies across. And amazing thing, people are healing with meditation, people are healing with other alternative therapies, Ayurveda, Siddha, Unani, and everyone is so beautifully rooted at our Shastras. So how this is happening? So I went across major part of the country to understand. Basically, it was for my own healing,
because I was suffering like anything from all these things. In fact, my weight went to 128 kilos because of the medicines, chemo, steroids, and all those givens. And I just can't do exercise because of overweight and a lot of other things. So, how to heal myself naturally? That was the primary reason, primary search, a very deep immersion, जहाँ पे ये ढूंढना जरूरी था कि खुद को heal कैसे करूँ, and that after healing myself, it became a very imperative mission that now, since I have come back, my basic purpose of life along with my child psychiatry is to convert this process into a meaningful healing platform where जो एक क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसीजेस है, जिसको ये माना जाता है कि अगर ये डिसीज आया है, लेट्स से डायबिटीज, तो ज्यादातर ये कहा जाता है कि लाइफ लॉन्ग दवाई लेना ही पड़ेगा. That is where we came into picture to complement those modern sciences. So once I got healed, it was a very imperative, or rather very strong urge inside, that now why can't my second life, my second birth, I would say, which has gone through, can be converted to a more purposeful outcome. And then based on that, combining all those sciences, we thought of starting concept called Holistica. So Holistica is संपूर्ण, कि एक ही प्लेटफॉर्म में सारे सॉल्यूशंस हैं. So that is how we started Holistica in 2015, and the journey completes today with one more decade, and now entering into much more better fortune. We are blessed to spread across countries and many cities now. आप बेसिकली एक MBBS और बाद में आपने मास्टर्स किया, और उसके बाद आप एकदम से आयुर्वेद की तरफ गए. तो ठीक है, आपकी जर्नी ने आपको उसमें हेल्प किया कि ठीक है, आप क्योंकि उस एक पैच ऐसा है आपकी लाइफ में जहाँ पे कि आपके एलोपैथी के इफेक्ट्स उतने आपको नहीं दिख रहे थे, और जो आपने आयुर्वेद और बाकी चीज़ों में किया उसका, क्योंकि हमारी ये 5,000 वर्ष पुरानी संस्कृति है. करेक्ट. ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है इंडिया के साथ कि हम विश्वगुरु होने के बाद पहले अंग्रेजों के गुलाम रहे, फिर मुगलों के गुलाम रहे, धीरे धीरे हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारा ज्ञान उसमें चला गया. करेक्ट. लेकिन अब आप जब खुद आदमी सोचता है, और स्पेशली आप देखेंगे ना कि 2021 के बाद, मतलब आफ्टर कोविड, तो एकदम रिवोल्यूशन जैसा है. करेक्ट. तो आपको ये जो है ना, मतलब एक जैसे बेसिक मैन, एक ले मैन की तरह अगर कोई आदमी आपके पास जाता है, और देखिए लोग क्या है ना कि अब इंडिया में बहुत सारी स्पेकुलेशंस होता है, सोच होती है, तो कैसे उनको कन्विंस करते हैं, और हाउ यू ट्रीट पीपुल, और कैसे उनको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि भाई ये चीज़ों के साथ, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एक जैसे मिथ है लोगों को, और आज एलोपैथी में है भी, कि भाई आज हम अगर किसी को शुगर हो गया, डायबिटिक हो गया, प्रेशर हो गया, तो वो चीज़ एक लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की लेते रहते हैं और पूरी ज़िंदगी चलती रहती है. तो आपके साथ जुड़ के, आप होलिस्टिका में जुड़ के, आयुर्वेद में जुड़ के, आप लोगों का क्या मानना, और कैसे क्या बताते हैं आप उनको, क्योर होता है, रहता है, या खत्म भी हो जाता है? So we don't conflict allopathy medicines, we complement allopathy medicine. So allopathy से हम लोग खिलाफ नहीं है. It's about complementing and having the right mix, right? It's all about getting the balance, right? अगर मुझे इंजरी हुई है, हड्डी टूटी है, तो I need allopathy. So it's about combining the right combination of allopathy and all natural therapies. So we are not just Ayurveda, we are yoga, we are meditation, we are sound therapy, we are physiotherapy. So ये सारे modalities जो है, जो एक inner core को heal करता है, So if you see allopathy, we always depend on outer medications, but we very firmly believe that the day you are born, you are born with the best medical store inside. And that best medical store has the perfect medications to heal. तो उसको पता है कि ये शरीर को कैसे हील होना है. So it is a combination of outer medication when the emergency arises, along with activating your own inner system.
and that takes care of everything, be it physiotherapy, yoga, hydrogen therapy, ayurveda, naturopathy, everything, meditation. So all those things are required to heal at the core. And that's where now we say that we are into disease reversal and we are not into disease management. ये सारे डिसीजेस में हो क्या रहा है, दे आर मैनेजिंग द डिसीजेस. तो And वो they are treating मेडिसिन the से symptom. इट्स लाइक अगर मलेरिया हुआ है तो आपको क्रोसिन इनिशियली जरूरी है, बट मोर इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग एंटी मलेरियल्स. तो क्रोसिन से सिर्फ बुखार ही कम होगा. तो ये दवाई जरूरी है. आई एम नॉट अगेंस्ट मेडिकेशंस, आई एम नॉट अगेंस्ट एलोपैथी. इनफैक्ट वी वांट टू कॉम्प्लीमेंट इट so that the person remains free from the diseases. And how that is possible is by combining the right things, and that's called integration. We integrate it. So that's where we now claim disease reversal, and it is 100% possible that person can be free from lifestyle diseases. उस organ को, उस cellular health को activate करना होता है. Now that reversal will be very much dependent on since how long the person is suffering from diseases. अगर उसको 2 या 3 साल का या 5 साल का diabetes है, then we say it will be 100% removed. But if he has diabetes for more than 20 years, then we need time. So the time factor, the age factor, since how long is suffering, how is his lifestyle, how is his addiction, how is the stress level. So these are all factors which will determine that how far we will claim reversal of the disease completely. So what the word you said, Singh Saab, is about the cure is very much possible. People have done this. There are cases and cases researched. So it's nothing new. And as you very rightly said, ये जो संस्कृति है ये तो 5000 साल पुरानी है. तो ये होता ही था. Just we have to tap to that potential. We have to bring back our sources and focus to that root cause. अभी आपने एक सेलुलर हेल्थ के बारे में बताया. Yeah. ये सेलुलर हेल्थ क्या है and what is the importance? See, आज अगर हम लोग डायबिटीज को अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो डायबिटीज एक आम आदमी समझता है इट्स द इंक्रीज्ड शुगर लेवल इन द ब्लड. ओके, लेकिन ये हमारे रिवर्सल लैंग्वेज में इसको हम लोग सिर्फ सिम्टम कहते हैं. तो ये जो शुगर लेवल है जो आपको ब्लड में दिखता है, दैट इज बिकॉज ऑफ डिस्टर्ब्ड मेटाबॉलिज्म. अब डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म कहां से आएगा? तो गट हेल्थ और लीवर से आएगा, राइट? अब लीवर में क्या है? ये तो ऑर्गन हो गया, बट दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स. अब वो जो सेल्स जो है, इट इज मेड अप ऑफ सर्टेन सेल्यूलर एनवायरमेंट एंड दैट इज कॉल्ड एपिजेनेटिक्स, राइट? सो सेल्यूलर हेल्थ अगर सही है देन यू आर डिसीज फ्री. अगर सेल्यूलर हेल्थ डिस्टर्ब्ड है देन इवेंचुअली इट विल लीड टू ऑर्गन कॉम्प्रोमाइज एंड इट विल लीड टू डिसीज. और वो जब डिसीज में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके कुछ प्रेजेंटेशंस होते हैं. नाउ ब्लड शुगर इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन. So 200 diabetes or 300 sugar is not a problem. The problem then goes to the root cause of insulin resistance. Insulin resistance कहाँ पे हो रहा है? At the cellular level, at the organ level, at the micro level. जब तक वो माइक्रो लेवल के डिस्टर्बेंस को डील नहीं करेंगे, सरफेस लेवल पे कैसे आएगा? So we always say ना, fix the source. But how to fix the source? We are only fixing the outer part. जैसे एक बिल्डिंग में एक लीकेज होता है तो वो जहां लीकेज हो रहा है वो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो प्रेजेंटेशन है. सो सेल्यूलर हेल्थ, Singh Saab, what you are saying is all about finding the root cause, the source of the problem which is presented, be it at the blood, be it at sonography or any other methods of diagnosis. तो जब आपने यहाँ पे जो होलिस्टिका केयर सेंटर चालू किया तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल से बताएं कि लोग जो आज इस पॉडकास्ट के थ्रू आपसे जुड़ रहे हैं तो उनको पता चले कि भाई हम यहाँ पे सेंटर पे करते क्या. सो हम कौन है? तो वी आर इंटीग्रेटेड मेडिकल हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स. इंटीग्रेटेड मेडिसिन या इंटीग्रेटेड एक्सपर्ट्स का मतलब ये है कि जहाँ पे वी हैव कंबाइंड मॉडर्न मेडिसिन एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, राइट?
कुछ लोग इसको फंक्शनल मेडिसिन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको इंटीग्रेटेड मेडिसिन भी बोलते हैं। तो होलिस्टिका वर्ल्ड क्या है? तो इंटीग्रेटेड मेडिकल हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स है। हम करते क्या है? उससे हम लोग करते हैं जो भी क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसीजेस है उसको रिवर्स करते हैं, एंड वी वर्क अ लॉट ऑन प्रिवेंशन। तो कौन से लाइफस्टाइल वी मेजरली डील विद 11 डिसीजेस: डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, माइग्रेन, पीसीओडी, अस्थमा, हार्ट डिसीज, आर्थराइटिस, डिप्रेशन एंड सच टाइप ऑफ डिसीजेस। तो उसको हम लोग रिवर्स करते हैं। अब रिवर्स कैसे करते हैं? थ्रू ऑल नेचुरल कस्टमाइज्ड अप्रोच। As I said, we don't conflict, we neither anywhere interfere in the allopathic medications. हाँ, yes. हमारे पास जो व्यक्ति आते हैं उनको क्लियर होता है, because now since 10 years we have more than database and we have more than success stories of more than 3,500 people. Great. जो किसी न किसी तरह से या तो अपने डिसीज से संपूर्ण मुक्त हो चुके हैं या 80% मुक्त हो चुके हैं। But Singh Sahab, it's a proud moment to say that not a single case has failed to reverse. Oh, great. हाँ, रिवर्सल कम हुआ होगा, 60% हुआ होगा, 70% हुआ होगा, that is possible. But in this 10 years, we don't have a single case which we take care of, which we took care of and has not reversed. So that is what happens at Holistica World, and all the natural therapies, as I said, it comprises of Ayurveda, yoga, meditation, sound therapy, physiotherapy, hydrogen therapy, head meridian therapy, and all those natural therapies which we support. We bring the diseases to a natural normal levels, and then उनके जो डॉक्टर्स होते हैं, जो कंसल्टेंट डॉक्टर होते हैं, वही उनकी मेडिसिन जो एलोपैथी अगर चल रही है तो मॉडिफाई करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी डू। आपने अभी इतना सारी चीज बताई। आज देखिए, हाइपरटेंशन तो रूट कॉज हो गया। तो जब हाइपरटेंशन है, डायबिटिक है और पीसीओडी है, सारी जो चीजें प्रॉब्लम्स है, तो आप जो एनालिसिस करते हैं बीइंग ए डॉक्टर, तो आज रूट कॉज क्या है? मतलब क्यों इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं? क्या लगता है आप? ये सारे एक अम्ब्रेला में कहा गया है, दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिसीजेस, राइट? So for any disease to happen, there is a formula, nature plus nurture. और उसको अगर मेडिसिन भाषा में कहे, मेडिसिन लैंग्वेज में कहते हैं, तो that is called genetics plus epigenetics equal to either disease or either health. तो जेनेटिक्स तो देखिए अपने हाथ में नहीं है। Let's say if you are diabetic, तो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया, assuming that. But epigenetics आपके हाथ में है, and epigenetics is nothing but right understanding of internal body health and lifestyle. वो आपके हाथ में है। तो डायबिटिक जैसे बोलते हैं जेनेटिक है। Yes. तो जेनेटिक तो चलो एक केस में हो सकता है, तो उसके चांसेस हैं कि बच्चों में हो जाए, अगर मेरे फादर को। और ऐसा भी होता है कि अगर फादर को नहीं है तो भी बच्चों को हो सकता है? बिकॉज इट इज अ लाइफस्टाइल डिसीज, एज आई सेड। तो वी हैव मेनी केसेस जहाँ पे पेरेंट्स को नहीं था एंड चिल्ड्रन हैव गॉट डायबिटीज। और आजकल जो मेजर वजह दिख रही है वो इट्स कमिंग बैक टू द इरेटिक लाइफस्टाइल, स्लीप, फूड एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेस। हाँ, मैं उस पर आने वाला ही था कि मतलब जो ये स्लीप का है, देखिए आज के जब से ये टीवी और सीरियल्स और सीरीज के चल गए तो और प्रॉब्लम है। तो पीपल यूज टू लुक एट द सीरीज लेट नाइट्स, एंड तो वो स्लीप का क्या रोल है? मतलब देखिए, क्योंकि क्या है ना, आज हमारा जब एपिसोड जाएगा लोगों को समझे, और तो उनको पता चलना चाहिए कि आज पहले जब बोलते थे ना अपने कि भी जल्दी सो जल्दी उठो, तो क्यों मतलब आप 10 बजे सोना है और 6 बजे उठना है, मोर एम्फेसिस था। और आज लोग जो है 4 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, 11 बजे उठते हैं। तो मतलब स्लीप का आयुर्वेद में, और आप तो एक एमबीबीएस डॉक्टर में, दोनों की तरफ से कंबाइंड, तो कितना एम्फेसिस देते हैं? Sleep is the most important part, Singh Saab. See, even if you understand the divine creation, उसने 24 घंटे में से 8 घंटा नींद लेने को बोला है। That means 33% of the life has to be spent in right mindful sleeping. Right? I would insist it's a right mindful sleeping, not sleeping anytime.
you know, because then only your body will reset. यानी 16 घंटे हम लोग कुछ भी गार्बेज डालते हैं, उसको रीसेट करने का जो समय है दैट इज स्लीप. तो शास्त्रों में, आयुर्वेदा में, वैदिक फिलोसॉफी में स्लीप हैज बीन अंडरस्टूड एज द बेस्ट हीलर. तो कितने घंटा मिनिमम सोना चाहिए? So minimum it depends from 6 to 8 hours. So minimum 6 hours. और जैसे मैंने कहा right mindful sleep, तो उसका quality sleep is very important. मनुष्य के अलावा मुझे नहीं याद है कि कोई भी प्राणी या पक्षी 8 बजे 9 बजे के बाद जगता हो, कोई नहीं. right? और हमारा पूरा cycle has changed. Even the research says the amount of sleep you have between 10 to 1 will give you almost double the advantage. Right. इसीलिए पुराने जमाने में लोग 9:30-10 बजे सो जाते थे, 3 बजे उठ जाते थे, क्योंकि वो डबल द अमाउंट उन्होंने ऑलरेडी ले लिया है. They used to experience the best moment of the day, that is ब्रह्म मुहूर्त. हाँ, मैं तो क्या गांव से बिलोंग करता हूँ और Yeah. मेरा बचपन गांव में गुजरा, तो लाइट नहीं होती थी. तो जनरली मतलब आप 8 बजे, टीवी भी उतना होता नहीं था, तो 8 बजे लास्ट है. रेयर कोई 9 बजे सोता होगा, अदरवाइज 8 बजे आपको पूरा गांव सोता हुआ मिलेगा, और 4 बजे तो सुबह हो जाती थी. Correct. तो दैट वाज द नेचर. Correct. और अब स्लीप के साथ हाइपरटेंशन जो है ना आज के टाइम में, मतलब इट इज वेरी वेरिएबल्स, मतलब इट कम फ्रॉम एनीवेयर. तो इस पे लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं, हाउ टू कंट्रोल द हाइपरटेंशन, हाउ टू मेक देयर लाइफ. मतलब देखिए क्या है कि आप एक तो आप सेंटर पे करते हैं, साथ के साथ एक जो है ना आप एज ए डॉक्टर, एज ए टीचर ऑफ होलिस्टिक सेंटर ऑल्सो, एंड एमबीबीएस डॉक्टर भी है. तो लोगों को एक तो अवेयरनेस देना चाहिए ना कि मतलब क्या चीज़ें करें हो कि आप हाइपरटेंशन से और प्रॉपर नींद ले पाए, आराम से रहें, टेंशन कम लें, और टेंशन कम आए उसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं, क्या चेंजेस लाइफ स्टाइल में करनी चाहिए? Yeah. So hypertension in medical language is understood as high blood pressure. Oh. That is a different story. Yeah, I'm not going for Right. So what you are saying, Singh Saab, is hyper stress, yeah, right? Or more stress or more distress, yes. right? So distress again is because of the lack of priorities, right? Stress, people have understood कि अब वो आता है तो मैं क्या करूँ? No, that is what we say, that for this only you have to sit in the driving seat, right? आपको ये पता होना चाहिए what thoughts to take and what thoughts not to take. So that's very, very important. Stress में we have seen people having self-sabotaging statements. यानी खुद ही को वो statement बना देंगे जो खुद ही को गिराते जाएंगे. But we all have control. जैसे मैं आपको कहूँ कि अभी मेरे पास 2 थाली है, ठीक है, एक सात्विक थाली है और एक वासी थाली है. What will you select? Always सात्विक, राइट? खाने के मामले में हम लोग कितने क्लियर हैं कि ये थाली ही लेनी चाहिए, ये थाली नहीं लेनी चाहिए. Why not the same thing for thoughts? And that's where we feel so helpless कि ये तो मेरे हाथ में है ही नहीं. So one is having a clarity that I need to be control, I need to be in control for my thoughts. Second, lifestyle management. Third is breathing, very, very important. Fourth is meditation, which is very important for stress management. You won't believe, sab, Silicon Valley mein, for getting an appraisal, you need to do Vipassana in a year. The best of the best corporates throughout the globe, be it Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Ariana Huffington, Mingyu Rinpoche, and all those people, if you see their life, in a day, meditation is a mandatory thing. Even in America and their countries also, they are emphasis on these meditations and Very much. Ayurveda. Very much. Oh, In fact, in Europe, it's real unfortunate at times, as you rightly said, कि हमारा शास्त्र, हमारी धरोहर, people have adapted and they have gone very high. When Mark Zuckerberg was going through the toughest time in Facebook, Steve Jobs said that you go to India, stay at Neem Karoli Baba's ashram for 1 month, and now we see the history. And it's what? It's the yes. clarity what we get. So when you are in stress, you are not clear.
When you are in stress, you feel bogged up, you feel lost, you feel heavy, you feel burdened. इसका मतलब जो है कि आध्यात्म भी जो है होलिस्टिक केयर का एक पार्ट है. Absolutely, absolutely. And that is a science of spirituality, because that is the source what we came from and where we will finally go. Body तो यहीं पे रह जाएगा सब. So that is unnegotiable, and that is a part. But where being a psychiatrist, being into healing, being a medical person, what we bring on table is science of spirituality. तो आप आज के यूथ स्पेशली मतलब द पीपल हु बॉर्न बिफोर फ्रॉम 50s to 80s आर लिटिल बिट ऑफ, अभी भी वो भगवान को मानते हैं, सब कुछ करते हैं. बाद में लोगों ने थोड़ा थोड़ा कम किया और स्पिरिचुअलिटी कम होती जा रही. तो उनके लिए क्या एक आपका लेशन मतलब एक संदेश होना चाहिए कि भाई देखिए वो जो फैक्ट है ना वो फैक्ट है. तो क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग भी उस चीज को देखिए आध्यात्म को पॉजिटिव वे में लें और साथ में उसके साथ योगा और इन चीज़ों को फॉलो करके वो लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं. इवन आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि बायो एनर्जी के ऊपर आप काम कर रहे हैं. Yes. तो अगर सक्सेसफुल होना है और आपको आगे बढ़ना है और कोई कितना भी बड़ा हुआ, अभी आपने बोला कि नीम करोली बाबा के यहाँ जाकर के भी, इवन विराट कोहली भी बीच में बहुत जब प्रॉब्लम आया था तो विराट कोहली गया वहाँ पे और उसके बाद उसकी सक्सेस स्टोरी रही. तो उससे ना लोगों को लेसन लेना चाहिए और क्या क्या और चीज़ों को करना चाहिए जिससे कि यूथ का भी जुड़ाव उस तरफ बढ़े और उनको ये नहीं लगे कि केवल काम 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 काम, मतलब हाउ टू बैलेंस देयर लाइफ. क्योंकि एक बार बीमार हो जाते हैं ना तो थोड़े दिन तक ही घर वाले भी सेवा करते हैं, उसके बाद बीबी बच्चे भी जो है किसी की कोई सेवा करता नहीं है. तो मतलब हाउ टू मेक देम हैप्पी एंड खुद को हेल्थी रखने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए रूटीन लाइफ में. See, if I see my 10 years of journey with Holistica World, some beautiful outcome I see and beautiful change is happening. You know, last 3 years, 4 years, say I would say things up. A lot of youth have started coming for meditation. Great. Matlab, on every first and third Sunday of the month, we have an open platform for meditation. We are the only one in India with a meditation cave at our premises. More than 70 people can meditate. And out of that, on Sunday, average occupancy is 40-50 people, and 50% are youth. Our average age? Something, our average 50 to 60 people come. नहीं जो आप बोलते हैं यूथ आते हैं तो what 50%. At what age? What At age people? of, let's say, 20 to 35. Oh, great. Right. At the same time, when we do analysis of lot of people, you know, because we are very high time into diagnostics, or diagnostics may we have gone much better way and way beyond, and we have created a very strong positioning into functional diagnostics. उसमें जब हम लोग देखते हैं ना सर, तो what is one very energetic thing, positive thing and negative thing is found out is these whole youth have awesome energy levels And great vision also. and great vision also. But one vitamin which is probably lacking, अगर वो streamline हो जाता है, these can be super world. Undoubtedly, when it is said that we are the millennials and this country can become super world, no doubt in that. The only one vitamin which I said which is lacking is focus. Awesome strength, amazing skills. They are good risk takers. Right. The only thing which is lacking, and we can find out in our, as you said, bioenergy, कि वो फोकस का विटामिन अगर आ गया, वो अटेंशन आ गया, वो क्लैरिटी आ गई, these people are simply superb. जो ये बायो एनर्जी आप बता रहे हैं और आप इसको बड़े स्केल में लॉन्च करने वाले हैं, स्पेशली फॉर द ओनर्स, डायरेक्टर्स, सीईओज एंड ऑल दोज हाई रैंक पीपल्स. तो what is bioenergy and how it will help to improve their self life and their organization and everything? So far in entrepreneur health, or let's say a peak performance health, the only thing which was measured in industries and corporates was the psychometric test. यानी एक स्केल होता है और आप मेजर करते हो, एंड वो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके आप आंसर्स देते हो, एंड देन कम आउट विद अ मैट्रिक्स. We have entered into the market very powerfully,
and these are our inventions for more than 10 years, as I said. These maps your bioenergy without you saying anything, and that's called biometrics. So there is a psychometrics and there is a biometrics. And now biometrics will measure your bioenergy levels. Now bioenergy में बहुत सारी चीजें होती है, and this we measure through terminology called HRV, that is called heart rate variability. ओके राइट अगर बायोमार्कर्स के अगर बेस्ट 3 पैरामीटर्स माने जाए यूएस एफडीए के मुताबिक, वन ऑफ द पैरामीटर इज एचआरवी. राइट वी हैव क्रिएटेड a proprietary software which gives so much of details, जिसमें उसकी लाइफ एनर्जी, स्ट्रेस इंडेक्स, उसका सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ब्रेन रिदम, उसका सेल्यूलर हेल्थ, एंड दीज टेल्स अस कि ये जो व्यक्ति है वो अभी फिलहाल किस लेवल पे परफॉर्म कर पा रहा है, राइट, और whether his capacity is this, okay, and he's performing at what level. So just yesterday we had one person, he's into real estate and from the picture we could figure out that की capacity massive है लेकिन वो खेल नहीं पा रहा है, and that can be mapped, and this he was simply aware. उसको पता था, उसके माँ बाप को भी पता है, लेकिन किसी न किसी तरह से ये टेस्ट के द्वारा हम ये मेजर कर पाए कि ये ऐसा हो रहा है. तो बायो एनर्जी मैपिंग जो है वो उसके एंटरप्रेन्योर हेल्थ या पिक परफॉर्मेंस हेल्थ के जितने भी पैरामीटर्स आते हैं उसको मेजर करता है. उस व्यक्ति के बायस्ड इंफॉर्मेशन, यानी आप तय नहीं करोगे या आप सवाल के जवाब दोगे, ऐसा नहीं है. आपके कहे बिना, जैसे कह सकते हैं ना कि पिक परफॉर्मर्स के हेल्थ की कुंडली पूरी निकल के आ सकती है. तो आप इसमें कुछ गवर्नमेंट हेल्प करती है आप लोगों को या अपना सेल्फ ही रहता है? नो, दिस इज सेल्फ ना. बट वन गुड पार्ट 2024 सितंबर से हो गया है अपने भारत देश में कि अंडर आयुष मिनिस्ट्री, ओके, राइट, आयुर्वेदा एंड ऑल ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट, राइट, जिसमें आयुर्वेदा, योगा, ऑफ कोर्स जहाँ पे एडमिशन होता है वहाँ पे, राइट, उन लोगों को मेडिक्लेम इंश्योरेंस का एडवांटेज मिल सकता है. लेकिन ये केवल आयुष्मान में है, प्राइवेट इंश्योरेंस में नहीं? आयुष्मान नहीं, आयुष में. आयुष्मान में तो कवर्ड नहीं है. ओके. लेकिन आयुष मिनिस्ट्री जो कहते हैं, आयुष मंत्रालय है, यस, आयुष मंत्रालय, उसके अंडर में आयुर्वेदा जिनको थेरेपी चाहिए और वो जो हॉस्पिटल है उसके पास वो नेसेसरी लाइसेंस और सर्टिफिकेशन है तो उसको मेडिक्लेम मिल सकता है. लेकिन जैसे प्राइवेट इंश्योरेंस होते हैं आज, मैक्सिमम पीपल आर हैविंग देयर ओन प्राइवेट केयर हेल्थ है, टाटा है, एनीथिंग, सब में मिलने लगा. सब में कवर्ड हो गया. मैंडेटरी लॉ पास्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट. वेरी गुड. And it applies to all the private insurances, anything. जो बहुत पहले होना चाहिए था. It will boost the entire. Yes, this is a very powerful industry, yes. Very powerful move by Modi ji government. Yes. देखिए, क्योंकि क्या है ना, मैं आप सबके लिए बोल रहे थे ना, मैं भी आपका एक पेशेंट रहा हूँ और मैं ऑल ऑफ सडन मुझे एक दिन डायबिटीज, मेरे फादर को नहीं था, किसी को नहीं था, एक दिन ऑल ऑफ सडन मुझे चेक कराया तो 180 मिला, जबकि मैं 90 रहता था. आई हैव नॉट टेकन एनी मेडिसिन फ्रॉम आउटसाइड और मुझे रिपोर्ट पे विश्वास नहीं होता था क्योंकि मेरे कभी हुआ नहीं था. एंड अभी मैं फास्टिंग में 90 के नीचे हूँ, 85 हूँ. तो आई हैव नॉट टेकन एनी मेडिसिन सिंस लास्ट 3 मंथ. बट जो रिपोर्ट है ना आफ्टर लंच जो है वो करीब 115 118 आता है और फास्टिंग में जो है 85 से 90 रहता है. करेक्ट. तो मैं भी आपका ही एक थैंक यू. हमारे एक गुरु आप भी हमारे, हम देख रहा हूँ आपका पेशेंट रहा. तो ये जो है ना, आपको ऐसा लगता नहीं कि मतलब देखिए आप ये तो करते हैं, अध्यात्म है, आयुर्वेदा है, मेडिसिन है, तो इसको एजुकेशन के रूप में स्कूल्स में प्रमोट करना चाहिए? सर हर जगह पे प्रमोट करना चाहिए. आई थिंक दैट शुड बी स्टार्टेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. नहीं, क्या होता है सर, देखो जब एक बच्चा छोटा होता है ना, वो 4-5 साल से लेके 15-16 साल तक, वो आप जो सिखा दो ना वो बहुत जल्दी उसको ऑब्जर्व करता है और उसको फॉलो करता है. अब एक बार जब 25 को क्रॉस करने लगता है ना तो उसके अंदर एक रिजिडिटी आ जाती है.
वो फिर कैलकुलेट करता है कि ये चीज मुझे लेनी है या निकाल देनी है, तो वो फिर वो चीज नहीं करता। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर गवर्नमेंट, अभी मोदी गवर्नमेंट और अपने ऑलरेडी हम बहुत सारा कुछ कर भी रहे हैं आयुर्वेदा के बाकी चीज़ों के लिए, तो अगर बेसिक एजुकेशन से ये चीज़ गवर्नमेंट डाले कि होलिस्टिक केयर, स्पिरिचुअलिटी, आयुर्वेदा के ऊपर अवेयरनेस हो एक बच्चों में, तो दैट विल हेल्प मोर इनटू देयर लाइफ। तो उसके लिए कुछ करते हैं आप लोग, प्रेजेंटेशन बना के गवर्नमेंट को या किसी को कुछ देते रहते हैं ऐसा कुछ? सो हमारे लेवल पे स्कूल्स वगैरह में वी गिव लॉट ऑफ टॉक्स, लॉट ऑफ सेमिनार्स, टीचर्स को अवेयर करते हैं। काफ़ी गवर्नमेंट लेवल पे ये लर्निंग्स हो भी रही है, जी मॉरल एजुकेशन में बोलो, न्यूट्रिशन में बोलो, तो वहाँ पे हो रहा है। बट जैसे पेरेंटिंग में सर हम लोग सिखाते हैं कि एक है टीच करना और दूसरा है उनको मिरर करना, यानी रोल मॉडल बनना। जी जी यू नो, सो वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे ये सब चीज़ों के बारे में सीखे, और उसके साथ पेरेंट्स को भी वो भूमिका प्ले करनी होगी जहाँ पे वो एज ए रोल मॉडल यू नो वो वही चीजें करें जो एक रियल लाइफस्टाइल में होना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली बच्चा सीखेगा कहाँ से? हाँ, वो तो तो मदर फादर पेरेंट्स से को सीखे। भी एटलीस्ट उनके सामने फॉलो करे, उनको वही चीज देखे जो वो पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली सिस्टम विल इम्प्रूव। दैट इज व्हाट हैपेंस इन बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जो भी आज नॉर्डिक कंट्रीज है वहां पे यही सारी हो रही है। सो वहां पे व्हाई इट इज द हैप्पीएस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? तो बहुत सिंपल वजह है, व्हाट यू राइटली सेड, कि वहां पे एजुकेशन सिस्टम उस तरह की है, पेरेंट्स उस तरह से गाइडेड है, पेरेंट्स उस तरह से क्लियर है, तो पेरेंट्स भी वही फॉलो करते हैं जो पढ़ाया जाता है। सो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम इनकॉर्पोरेट होते हुए चली जाती है। सो देन यू डोंट नीड टू डू दैट मच एफर्ट्स, you know. So that is what cultivating the right culture at home also, along with the right education, गवर्नमेंट्स अपने लेवल पे तो काफी एफर्ट्स कर देखिए रहा है। सूरत बहुत बड़ा 82 लाख करीब पॉपुलेशन हो गया सूरत का, एंड Yes. वी आर द 9th richest सिटी इन इंडिया ऑल्सो। तो अब क्लीनिंग में भी आते हैं, सब आते हैं, काफ़ी इंडिया आगे बढ़ गया और हेल्थ केयर की एम्फेसिस भी बहुत है। लेकिन ना जो सूरत आज हमारा 82 लाख के ऊपर की पॉपुलेशन हो गई और वी आर द 9th richest एज पर अभी थोड़े दिन पहले डाटा आया था गवर्नमेंट का, उसमें हम 9th richest इन इंडिया है। ठीक है, ये हेल्थ केयर बाकी फैसिलिटीज भी बहुत सारी लैक करती हैं, बट हम जब हेल्थ केयर पे बात कर रहे हैं तो हेल्थ केयर के प्रति जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो यहाँ पे क्यों नहीं आता है, और क्या ऐसा करना चाहिए? क्योंकि आप एक एमबीबीएस और वो डॉक्टर के साथ साथ आप एक होलिस्टिक केयर के भी डॉक्टर हैं कंबाइंड, तो ऐसा क्या करना चाहिए सूरत में आप लोगों को, गवर्नमेंट के लोगों को या बॉडी को, कि लोगों का विश्वास बढ़े और मोर एंड मोर पीपल आपके पास आए और स्वस्थ रहे और मस्त रहे? सो जैसे कहा ना सर कि बेसिकली इसमें जो मेजर इश्यू है दैट इज ऑफ द प्रायोरिटाइजेशन ना। सूरत मौजिलू शहर છે એવું કહેવાય, એટલે सूरत इज मतलब इट इज बेस्ड ऑन फन, एंजॉय करो, मस्त रहो, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट हेल्थ को बहुत बुरी तरह से करता है। अभी खा लो, कल का कल देखेंगे। तो ये जो है कहते हैं ना सूरत નું जमण काशी નું मरण, तो यहाँ का जो खान पीन का जो वियर्ड लाइफस्टाइल का जो वजह है वो इतनी ज़्यादा है कि उसके सामने हेल्थ इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और अर्ली इंटरवेंशन पे कोई काम ही नहीं करना चाहता। अभी भी हेल्थ के प्रति अवेयरनेस देखो, या अमाउंट ऑफ रेशियो विच इज पीपल स्पेंडिंग फॉर हेल्थ इज निग्लिजिबल। तो अभी भी पढ़ते सबसे आए मैं हैं। बीच में बोल रहा हूँ सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं चलो आदमी करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लोग जी। नॉट अवेयर है, तो जी। मैंने अपनी बात करी कि गवर्नमेंट को थोड़ा बचपन से, मतलब प्राइमरी एजुकेशन से हेल्थ और न्यूट्रिशन और आयुर्वेदा और सब चीज़ों पे थोड़ा एक एजुकेशन का पार्ट बना दें, तो अवेयरनेस होगा तो बच्चे भी करेंगे और सब आगे तक करते जाएंगे। राइट। लेकिन व्हाट बॉडी इज डूइंग, मतलब एज ए मेडिकल बॉडी, एज ए, मतलब क्योंकि जो फेथ है ना, आज वो कुछ भी होता है लोग भाग के जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, भाग के चले जाते हैं, अहमदाबाद चले जाते हैं, मतलब जो विश्वास है वो सूरत में क्यों नहीं पैदा होता? सो व्हाट यू आर सेइंग इज अबाउट द मेडिकल यस, इंडस्ट्री, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अमाउंट ऑफ एक्सपर्टीज, राइट, वो कहीं ना कहीं मेट्रोस में, बिकॉज देयर स्पेशलिस्ट आर मोर,
वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इससे द इंस्ट्रूमेंट वाइज मे बी मच बेटर। जो एक्सपर्टीज वो लोग टेबल पे लाते हैं, बिकॉज एक्सपोजर इज वेरी हाई। आज मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, अहमदाबाद हैज टर्न टू बी अ बिग मेडिकल टूरिज्म। अब जिस टाइम पे सूरत में 3 या 4 यूरोलॉजिस्ट थे, तब उस टाइम पे अहमदाबाद में 80 थे, 80। तो कितना वहां पे टर्नओवर होगा, कितना वहां पे अमाउंट ऑफ क्लाइंटल्स होगा। तो जितना क्लाइंटल्स ज्यादा होगा तो डेफिनेटली एक्सपर्टीज विल बी मच मोर देयर। तो जिसकी वजह से बेसिक्स जब लगता है कि भाई एक बियॉन्ड लिमिट चैलेंज आ गया है और केस हैज बिकम क्रिटिकल, तो नेचुरली ट्रस्ट जो आ रहा है वो वहां पे एट मेट्रोज इट इज कमिंग मोर। बट इवेंचुअली मेडिकल इंडस्ट्री सूरत की भी बात करें तो इट हैज ग्रोन मच बेटर। नाउ वी हैव बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स कमिंग अप विद बेस्ट सेटअप। बट एक जैसे कहते हैं ना, एक मेंटालिटी बैठी है लोगों में, एक फियर बैठा है कि अभी इसके आगे कुछ भी जाए तो बाहर ही चला जाना चाहिए। वो धीरे 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 कम हो रहा है, बट इट इज स्टिल देयर इन द पीपल। सो बट मेट्रोज जो है, आपका क्वेश्चन है कि वहां पे क्यों जाते हैं। सूरत मेट्रो से कम कहाँ रहा है? सर हेल्थ वाइज तो अभी भी मेट्रो से कम ही है। फाइनेंशियल वाइज आप 9th रिचेस्ट इन द कंट्री कह सकते हैं, क्लीनलीनेस में कह सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू हेल्थ it is we are still far behind, and our research data and the statistics tells about that. होलिस्टिक केयर को आज के मॉडर्न मेडिसिन के साथ कैसे जोड़ के देखते हैं? So holistic medicine या integrative medicine में एक पार्ट की बहुत सॉलिड कमी थी। One was the diagnosis. अभी डायग्नोस्टिक दुनिया की बात करें, डायग्नोस्टिक वर्ल्ड की बात करें, तो जो भी डायग्नोसिस होता है उसमें रूट कॉज डायग्नोसिस है ही नहीं। शुगर पता चलती है, लेकिन किस वजह से शुगर है, क्या वो स्ट्रेस से लाया, स्लीप से लाया, गलत खाने से लाया, गलत लाइफस्टाइल से लाया, वो पता ही नहीं चलता है। वी ओनली वर्क इन मॉडर्न मेडिसिन ऑन द शुगर लेवल्स। तो ये जो पार्ट है डायग्नोस्टिक का, जिसमें रूट कॉज डायग्नोसिस कहते हैं, वो बहुत बड़ा गैप था। वो आज तक वो एक मेजर डायग्नोस्टिक वर्ल्ड में सॉल्व नहीं हुआ है। वहाँ पे वी पुट आवर फुट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, और हमने डायग्नोस्टिक टूल बनाया जो एक व्यक्ति के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करता है। एंड वंस वी आइडेंटिफाई द रूट कॉज, देन वी करेक्ट दोज लीकेजेस विच इज देयर इन द लाइफस्टाइल in your holistica center? in our holistica setup. And at the same time जहाँ पे बंदा नहीं आ सकता है, so we have many clients from even out of the country where we guide them online. We have many clients which are out of the city, so they came for 1 week at Surat, and now since almost 2 years we are managing them online. तो वो सारे मैनेज हो जाते हैं, but where we come into picture, we find out the root cause. That is our hardcore expertise. तो what can be the reason of diabetes? मतलब एक जनरल, क्योंकि आज मैं मान लीजिए मैं हूँ, मेरे को आज बच्चे हैं, उनके किसी को नहीं है, तो वो क्या ध्यान रखें कि वो डायबिटिक हो ही नहीं? सो डायबिटीज ये मल्टीफैक्टोरियल रोग है। मल्टीफैक्टोरियल रोग का मतलब कि कोई एक वजह से नहीं होता। आप में अगर जेनेटिक्स है तो आपको डायबिटीज होना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर जेनेटिक नहीं तो है, वो कौन सी वजह है? तो एक है लाइफस्टाइल, दूसरा है खाना, तीसरा है ओबेसिटी, चौथा है सांसें भरना, ब्रीदिंग, राइट, है ना, पांचवा है स्लीप, एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेस। तो ये सारे फैक्टर्स अगर काबू में हैं तो नो वन वुड सफर फ्रॉम डायबिटीज, और अगर सफरिंग होता भी है तो इट्स ऑन अ वेरी वेरी मिनिमल लेवल। जैसे अब लोग डायबिटिक्स होते थे शुगर, तो क्या मीठा खाने से शुगर होता है? Not necessary. My dad is 82 and he must be eating, handsome sweets in a week, right? But his sugar level hardly crosses 100 even post, prandial after खाने के बाद। तो आज के टाइम पे ना बहुत सारा मीथ है, और सोशल मीडिया का जमाना है ना, तो लोग क्या करते हैं कि अब यूट्यूब पे वीडियो की भरमार है, तो लोग वहाँ से कुछ भी उठा लेते हैं और कुछ भी करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या एक आपकी राय है कि मतलब आप इधर उधर से कुछ भी उठा के कुछ भी मत करो, प्रॉपर गाइडेंस लो और अच्छे जगह जाओ और अच्छे प्रॉपर केयर में काम करो? तो उनके लिए कोई एक लेसन, 2 शब्द उनके लिए बोलिए। So work out on your root cause, find out the root cause.
राइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये इंफॉर्मेशन लोडेड सोसाइटी है ना, नॉलेज लोडेड सोसाइटी नहीं है, इट्स एन इंफॉर्मेशन लोडेड सोसाइटी। उसमें कोई बैरियर नहीं है, एनीवन कैन पोस्ट एनीथिंग। तो ये सब मिल रहा है, आपको ये समझना होगा व्हाट इज हेल्पिंग यू, व्हाट इज नॉट हेल्पिंग यू। एंड वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, पहले जो कहा जाता था कि आपको डायग्नोस्टिक वर्ल्ड में फॉर चेकिंग योर ओन हेल्थ यू शुड चेक रेगुलरली आफ्टर 40, नाउ इट हैज बिकम मैंडेटरी आफ्टर 30। तो हर मतलब वंस यू क्रॉस 30 years, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर यू गो थ्रू डिटेल डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स एंड यू चेक व्हाट आर द लेवल्स टेलिंग यू अबाउट दैट, you know. So that assessment, that analysis, if it is done, definitely you will not suffer throughout your lifespan. मैंने सर को एक क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन का जवाब मैं ही देता हूँ, क्योंकि मैं भी लास्ट 10-15 साल से इसी दौर से गुजरता रहा हूँ। तो मैं, जो लोग भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मैं उनको एक चीज कहना चाहता हूँ कि कभी भी जो है ना, आप गूगल मार के और यूट्यूब पे वीडियो देख के कुछ भी मत करो। अब मेरा एग्जाम्पल मैं खुद के लिए बोलता हूँ कि मैं सुबह उठ के पपीता खाता था, मैं सुबह उठ के मेथी का दाना पीता था। किसी ने बोला मेथी का दाना कोई डायबिटीज नहीं होती, पेट साफ रहता है। जब मैं आपके हॉस्पिटल में गया तो मैडम ने दोनों चेक करके बोला आपकी प्रवृत्ति गर्म की है, आपको पपीता खाली पेट नुकसान करता है और मेथी आप ले नहीं सकते हो कि गर्म करती है। तो अच्छा है, वो किसके लिए अच्छा है, किसके लिए खराब है। तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि कभी भी आप सुनी सुनाई बातों पे देर, आपने तो सही कहा कि यहाँ पे जो आज का जमाना है ना सोशल मीडिया का, सो मेनी इंफॉर्मेशन है देयर, हेल्थ से ले लो, सब कुछ किसी भी सब्जेक्ट पे ले लो, बट आपको बीइंग ए वाइज पर्सन, बीइंग ए रिस्पेक्टेबल पर्सन, आपको उस सोच को एनालाइज करना है और ऑलवेज एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए जो उसका एक्सपर्ट हो। Yes. जो वो कहिए ब्लाइंड करिए, आप उसमें अपना दिमाग मत लगाइए, क्योंकि Correct. आप अगर उसके अगर मैं आज टेक्सटाइल का मास्टर हूँ तो मैं मेरी लाइन का ही मास्टरी कर सकता हूँ, आपकी दवाइयाँ नहीं दे सकता। करेक्ट। तो जो लोग भी एपिसोड सुन रहे हैं, एक बहुत अच्छा गाना था इंग्लिश में कि वन डे माय फादर से डू व्हाट एवर यू डू बट डोंट सर्च योर सिम्टम ऑन गूगल, क्योंकि आप पेट दर्द का देखेंगे ना, उसमें सिर दर्द की दवाई बताएगा। Correct. आप सिर दर्द का देखेंगे ना तो वो आपके घुटने की पेन का बताएगा, एंड दैट विल डायरेक्टली बोलो किल यू। करेक्ट। तो आप अपनी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करिए और इधर उधर की इंफॉर्मेशन पे मत जाइए। आप अच्छे सेंटर्स पे जाइए, सर के सेंटर पे जाइए, अच्छे डॉक्टर से मिलिए और वहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस के साथ काम करिए। और आयुर्वेद बहुत पुरानी पद्धति है, उसको अपनाइए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।